Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to everyone who has joined us. So, before we dive into core presentation, let me introduce myself. My name is Kainat Javed. I am currently final year student of BS Psychology. My core clinical focus involve ABA, Applied Behavior Analysis, Cognitive Behavior Therapy, CBT, NLP, Neuro Linguistic Programming, and Speech and Language Therapy. I am also working as a vice president at Healing Center organization. So today's webinar is proudly hosted in collaboration with the Fickerless community. For those of you who might be new to this space, Fickerless is an incredible platform dedicated to mental health awareness, stress management, and self-care. So our tonight topic is PFA, psychological first aid, helping others in the time of stress. So when someone's bone break, we know that what we have to do. We offer first aid. So when someone's hurt or mind is hurting, so do you know what to do? When someone's the most life-changing help, it's not a medicine or diagnosis. It's a calm presence, kind word, and knowing how to respond. Not every bond is visible, and not everyone needs a bond aid. When someone's world falls apart due to loss, trauma, disasters, personal crisis, and a lot of things, personal issues also. So, what they need first? It's not an advice and it's not a lecture. So, what is this? It's about comfort, it's about safety, it's about someone who listens to them, someone who don't judge, someone who simply stays. So, PFA is an integral approach to helping victims living in the wake of dramatic events, natural disasters, pandemics, public health emergencies, or even a personal crisis. So, next slide, please. पीएफए इज अ बेसिकली इमोशनल फर्स्ट एड. आप देखते हैं कि किसी को चोट लगी है या किसी का बाजू टूटता है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉलिंग टू एन एम्बुलेंस, किसी डॉक्टर के पास ले जाना, या हम सर्जरी से पहले सबसे पहले हम उसकी बैंडेज स्टार्ट करते हैं. सो पीएफए इट्स अबाउट इमोशनल बैंडेज. सो एग्जैक्टली जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, वी नीड इमोशनल सपोर्ट्स. इट्स ह्यूमेन स्पोर्टिव एंड प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स टू अ फेलो ह्यूमन हु इज सफरिंग फ्रॉम. Yes, it's not professional therapy or counseling. We don't have to be a professional psychologist to be a good human. It's about just emotional resilience and emotional availability. You just have to be present and just need to be care. This is where healing starts. PFA don't require a master degree. It requires a human heart. Next slide. Next. नेक्स्ट स्लाइड कर दें सुबान. इससे नेक्स्ट स्लाइड है मैकेनिज्म वाली, वो वाली शेयर कर दें काइंडली.
सो अब हम देखते हैं कि हाउ इट डज वर्क, द मैकेनिज्म्स क्या है। अंडरस्टैंड हाउ पीएफए एक्चुअली वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल। जब कोई बहुत बड़े ट्रॉमा या शॉक से गुजरता है तो उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम फ्रीज हो जाता है। सो पीएफए किस तरह हेल्प करता है? थ्री मेजर वेज में। इमीडिएट स्टेबलाइजेशन, it directly calms down the physical fight or flight panic response. Softly, you don't have to always say to anyone कि तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो। देखिए, जब किसी इमीडिएट सिचुएशन से कोई गुजरता है, कोई ट्रॉमा है, कोई हम किसी भी लव वंस की डेथ हो सकती है, कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसे क्राइसिस हो गए हैं, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, फेलियर हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। सो हम कभी भी उनसे ये नहीं कह सकते कि इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। सो अगर हम उनको हेल्प करने जा रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अ emotional. So we have to be careful about their recent situations। हम उनको हैंडल करेंगे और हम ये कहेंगे कि देखें, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप पहले सांस लें, आप पानी पिए। सो लेट्स टेक अ स्लो ब्रीथ। फिजिकली हम उनको हेल्प करेंगे ताकि उनकी जो हार्ट बीट होती है एट एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा हमारे जो हार्ट बीट होता है या ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज्यादा अप हो जाता है। So someone around us may be silently suffering. So today we are going to learn how to become the first line of support through PFA, comforting and helping them. So I think maybe इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से स्लाइड स्टॉप हो गई हैं। सो किसी इंसान की फिजिकली हेल्प करना टू स्लो डाउन देयर रेसिंग हार्ट बीट, moving the person away from the immediate chaos or shore sharaba, like guiding an overwhelmed classmate out from crowded। So सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ ये कंडीशन हो रही है, हम उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उसकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो। और हम ये कोशिश करेंगे कि उसे क्राउड से थोड़ा सा दूर लेके जाएं। Sometimes we only need a warm hug or a shoulder or just to listen to them। कभी कभार लोगों को जस्ट एक अच्छे से लिसनर की जरूरत होती है और एक अच्छे शोल्डर की जरूरत होती है। वो जब इमीडिएट रिस्पॉन्स उनको समझ नहीं आ रहा होता, या वो रिजल्ट की वजह से भी हो सकता है कि हमें चीजें समझ नहीं आती कि हमने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। सो WHO के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 3 Ls हैं PFA के। जो हमारे पास बेसिकली पीएफए स्टार्ट हुआ था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद स्टार्ट हुआ था। जबकि देखा गया कि जो सोल्डर्स हैं उन्होंने फाइट के बाद उनको काफी सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हुए, उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। सो बीएफए का जो बेसिकली बुनियाद है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्टार्ट हुई ताकि जो सोल्डर्स हैं या जो फाइट करने वाले हैं उनको साइकोलॉजिकल हेल्प दी जाए। सो 3 Ls हैं WHO के अकॉर्डिंग। लुक, लुक में हम देखते हैं कि स्कैन द मूवमेंट। मूवमेंट को हमने स्कैन करना है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल एक रोड इंसिडेंट अगर हम देखें ना, तो ये नोटिस करना होगा कि किस किस को फिजिकली इंजरीज आई हैं। सो रोड एक्सीडेंट होता है, एक ट्रॉमा है। जो लोग इससे गुजरते हैं वो ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे चीज है। जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनको समझ नहीं है कि एकदम से क्या हुआ।
अगर आप उस चीज के मतलब उस चीज से आप किसी को देखते हैं कि कोई आपके सामने एक हादसा हुआ और चंद एक लोग जख्मी हुए। आजकल हम देखते हैं कि क्या होता है कि लोग फौरन वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी इस तरह का नहीं होता जो कि ये काम ना करे, या तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उनकी हेल्प करनी है। हेल्प किस तरह करनी है कि हम ये देखेंगे कि कोई फिजिकल इंजरीज हुई है या किस तरह की चोटें हैं। हम देखेंगे कि कौन चीख रहा है, कौन शॉक की वजह से फ्रीज हो गया है, कौन खामोश हो गया है। फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हम सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, देन हम उन्हें जो है वो पानी सर्व करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिसन, गैदर फैक्ट्स एंड फीलिंग। पैनिक पर्सन के साथ हम बैठेंगे, उन्हें बिना इंटरप्ट या जज किए उनको पूरी बात करने का मौका देंगे और पूछेंगे कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। लिंक में हम देखते हैं कि हम जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी हमारे पास को अगर कोई बच्चा देखते हैं, वो अगर वो गुम हो जाता है तो हम उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। कि अगर तो वो बच्चा लाइक ही इज सेंसिबल या मेच्योर, उसकी एज देखेंगे कि उसका अगर उसके पेरेंट्स का नंबर याद है तो हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन जो है वो हम किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास ले जाएंगे या किसी की फैमिली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमें ऑन द स्पॉट चंद एक लोग अगर हमें हमारी इमोशनल हेल्प नहीं करते, उसकी वजह से लोग जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसे पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई क्लासमेट है, अगर आप देखते हैं कि वो क्लास के किसी कोने में बैठा परेशान बैठा है, उसके दोनों हाथ उसके सर पे एंड ही इज बिलाई कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इस तरह, वो पैनिक कर रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे और उसके लाइक उसको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। अगर आप इस तरह, हम में से कोई भी शख्स अगर इस तरह नहीं करता, किसी की भी हेल्प हम अगर हम ये सोच के कर लेते हैं कि ठीक है वो हो रहा है तो हो रहा है, मुझे क्या जरूरत है हेल्प करने की, या मैं उसके पास क्यों जाऊं। ये जो हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी के भी ऑन द स्पॉट, अगर इस चीज को रिकवर ना किया जाए तो एक लॉन्ग टर्म ट्रॉमा हमारे पास आ जाता है। क्योंकि लोग उस टाइम सेल्फ ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ थिंकिंग जो है वो अपनी खो देते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़े स्ट्रांग हैं या हम बड़े लाइक हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल है तो हम इस चीज को फेस नहीं करेंगे। इट इज टोटली अनप्लैंड और अनसर्टेन चीजें होती हैं जो किसी के साथ भी किसी भी मोमेंट पे हो सकती हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड कर दें। डिस्ट्रेस में मौजूद लोगों से बात करते वक्त ना जो हमारे अल्फाज होते हैं या जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे वर्ड्स जो इस तरह के होते हैं कि कभी कभी किसी को इमोशनली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। एक वार्म मोटिवेशन, किसी को ये कह देना कि इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और किसी को ये कह देना कि तुम कर सकते हो, आई बिलीव ऑन यू, यू कैन डू इट। एक बहुत ही देखने में या कहने में बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम अगर किसी को ये कह देते हैं तो किसी की लाइफ का रिस्टार्ट फेज हो सकता है ये। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीजें आती हैं वाइल डूइंग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। डूज में हम देखेंगे कि बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी, हमेशा सच बताएं।
किसी के पास किसी का सवाल का अगर आपके पास जवाब नहीं है ना, तो कभी भी मत ये कहें कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सो अगर आप किसी को किसी की पैनिक सिचुएशन में कोई अगर आपसे पूछता है, फॉर एग्जांपल किसी एक्सीडेंट की अगर हमने बात की, तो अगर उसके जो साथ वाला पर्सन है अगर वो पूछता है कि जो मेरे साथ हो उसके साथ क्या हुआ, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप कहें कि पता नहीं वो कहाँ है या वो कैसा है या उसको डॉक्टर ने कहाँ रेफर किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ठीक होगा, मुझे फिलहाल उसके बारे में नहीं पता, मैं आपको पता करके बताता हूँ। आप ऑन द स्पॉट जो जो इंसान है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते तुम्हारे साथ वाले के साथ ये हुआ है या उसकी डेथ हो गई है, तो आप हम कभी भी इस तरह किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कल्चर्स, विक्टिम्स की पर्सनल डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखें और उनके कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज का पूरा ख्याल रखें। ऑब्वियसली अगर कोई फीमेल है तो हम मेल पर्सन उन्हें जाके नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में या ये जगह पे या सिटीज में डिपेंड करता है, बैकवर्ड एरियाज में हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको क्या कब और कैसे किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास डूज में लिसन एक्टिवली विद एम्पथी। हमें किसी को भी किसी की हेल्प करने के दौरान ये नहीं समझना कि ये बंदे की पास हिस्ट्री क्या है, या ये किसी स्ट्रेस पे है या किसी इसको कोई डिसऑर्डर है। सो हमें जस्ट ऑन द स्पॉट जो उनके साथ सिचुएशन चल रही है, वो पैनिक कर रहे हैं, उसमें उनको हेल्प करना है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी पास्ट हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। अगर कोई वो बात शेयर कर रहे हैं तो हमें उन्हें इंटरप्ट नहीं करना, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं कहना ना कि ठीक है हो जाता है, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, डोंट बी ओवर रिएक्ट। सो इस तरह कभी भी किसी को नहीं कह सकते। फोकस ऑन प्रैक्टिकल हेल्प, उनकी इमीडिएट फिजिकली सर्वाइवल नीड्स पर फोकस करें, लाइक प्रोवाइडिंग वाटर और सेफ सिटिंग एरिया। डोंट्स में अगर हम देखें तो डोंट फोर्स देम टू टॉक। अगर आप किसी के पास जाते हैं, वेदर ही शी इज योर क्लासमेट, फ्रेंड, कोलीग, या आपको रोड साइड पे मिला हुआ कोई अनजान शख्स, अगर आप उसके पास जाते हैं, अगर आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मतलब इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आपको फील हो कि वो आपसे बात करना नहीं चाहते या कुछ बताना नहीं चाहते, तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। हम जस्ट उनको अगर पानी की जरूरत है तो हम उनको पानी देंगे, या हम उनको जस्ट कहेंगे कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपके पास हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे कह सकते हैं। डोंट गिव फॉल्स प्रोमिसेस टू एनीवन। ऑलवेज रिमेम्बर कि कभी भी किसी को झूठी तसल्ली ना दें जब तक आपको खुद उस बारे में अश्योरिटी ना हो। हम कभी भी इस तरह नहीं कहेंगे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सबके साथ होता है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँ, आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें, आप खुद को संभालें और ये पानी पिएं। डोंट टेल देम हाउ दे शुड फील। उनके इमोशंस को हम कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, या कभी भी ये नहीं कहेंगे हम कि स्टॉप क्राइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, बी अ मैन। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ही फेमस सा डायलॉग है कि मर्द रोते नहीं है, या कभी भी जब कोई बंदा इस तरह परेशान हो, रो रहा हो, तो हमें बहुत अजीब लगता है कि सीरियसली अब ये रो क्यों रहा है, हो जाता है इतनी छोटी सी बात जब ये रो रहा है। सो लेट देम क्राई नेचुरली, क्योंकि हमारा जो इमोशनल स्टेट है, हम उस स्टेट पे होते हैं कि अगले बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, हम उनका अगर ये बिला वजह की तसल्लियां, बिला वजह की एडवाइसेस और लेक्चर्स देते रहेंगे, सो इट्स नॉट लाइक दैट। Don't act like a therapist. So I'm just saying to all of you who are psychology students कि we don't be act like कि हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बड़े थेरेपिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं। पीएफ इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक डिग्री। आप किसी के भी हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर देयर क्राइसिस। तो नहीं, किसी भी मेंटल इलनेस का हम डायग्नोस नहीं करेंगे ऑन दिस बोर्ड, किसी के साथ अच्छा ये भी हो सकता है, इस तरह एक्ट कर रहा है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है हु कैन प्रोवाइड पीएफए, यानी हु कैन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। एज यू नो क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन, पीएफए इट्स नॉट रिजर्व ओनली फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। बहुत से लोग समझते हैं कि साइकोलॉजी डिग्री की जरूरत है या कोई स्पेसिफिक डिग्री है, सो इट्स अ मिथ। इट्स अ वाइटल स्किल फॉर ऑल।
क्योंकि इमोशंस और हर्ट तो हम सबके अंदर है ना। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, मैं उसके पास क्यों जाऊं, ठीक है वो बैठा है तो बैठा रहे। सो हमें दूसरों के इमोशन की केयर करनी चाहिए, उनको वैल्यू देना चाहिए एज अ ह्यूमन। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, फायर फाइटर्स, पुलिस, रेस्क्यू वर्कर्स जो सेफली विक्टिम्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में किसी का साथ नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंसिडेंट देख रहे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है, कोई रोड इंसिडेंट ऐसा है कि आप हेल्प नहीं कर सकते, सो यू शुड कॉल्स टू समवन प्रोफेशनल, लाइक फायर फाइटर्स हैं हमारे पास, पुलिस वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं जो कि सेफली विक्टिम्स को हैंडल कर सकते हैं। टीचर्स एंड एजुकेटर्स जो स्कूल कॉलेज में या किसी भी पैनिक डिस्ट्रेस स्टूडेंट को calm डाउन कर सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स एंड एवरीडे इंडिविजुअल्स, एनीवन कैन एक्वायर द स्किल टू सपोर्ट अदर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और क्राइसिस। अगर आपके सामने आपका दोस्त या रास्ते में कोई कोई भी स्ट्रेंजर शख्स पैनिक कर रहा है, सो यू कैन सेट अप एंड हेल्प टू देम। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर मोर स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल अप्रोच हमारे पास जॉन यूनिवर्सिटी ने एक मॉडल डिजाइन किया था जिसे हम रैपिड मॉडल कहते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं। रैपिड एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उनकी बात को ना बिना सुने। मैं कभी भी आई डोंट हैव राइट्स कि किसी की भी पैनिक सिचुएशन में मैं जाके कहूँ है हाय मेरा नाम कायनात है, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। नो, ये मैं कभी भी नहीं कह सकती। बिकॉज उनको उस सिचुएशन में मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा बैकग्राउंड जानने से कोई गर्ज नहीं हो सकती। और उस टाइम उनको मेरा बैकग्राउंड या मेरा इंट्रोडक्शन जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो मेरे इमोशंस की, मेरे साथ देने की और मेरी सेंसिबिलिटी की। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास असेसमेंट ऑफ नीड्स का है। हम सिचुएशन उनके इंटरमीडिएट इश्यूज को समझेंगे। हम देखेंगे कि उनकी नीड्स क्या है, या वो किस टाइप की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। फिलहाल अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आया तो हम उनसे पूछेंगे कि आपके फैमिली में हम किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना नंबर दें। तो या हम उनको पानी दे सकते हैं, सबसे पहले हम उनको किसी सेफ जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, एम्बुलेंस को हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन, सबसे अर्जेंट और क्रिटिकल इशू पर फोकस करेंगे। इंटरवेंशन है हमारे पास नेक्स्ट, प्रैक्टिकल कंफर्ट, वैलिडेशन और इनिशियल मेंटल स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना। देन हमारे पास है डिस्पोजिशन, नेक्स्ट स्टेप और फर्दर ऑनगोइंग प्रोफेशनल हेल्प के साथ कांटेक्ट करेंगे हम ताकि वो अकेला फील ना करें। नेक्स्ट कर दें स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इसे हम ग्राउंडेड मेथड कहते हैं, 5 4 3 2 1 मेथड। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जब किसी एंजाइटी और पैनिक सिचुएशन में जो हमारा माइंड होता है, या तो वो फ्यूचर के डर में स्टक हो जाता है या वो पास्ट ट्रॉमा में ट्रैप हो जाता है। लाइक अगर किसी की जॉब चली गई है तो वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा, उसके बिल्स के बारे में, घर के बारे में, फैमिली के बारे में। उसके अगर बच्चे हैं तो वो सोचेगा, उसको हजार सोच आएंगे कि वो उसने किस तरह हैंडल करना है। सो इन 5 चीजों में हम देखते हैं कि 5 थिंग्स क्या हम देख सकते हैं। लाइक 4 थिंग्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। हमारे जो 3 थिंग्स हैं, हम हेयरिंग टेक्निक है, 2 थिंग्स वी कैन स्मेल, 1 थिंग वी कैन टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक सिचुएशन शो हो रही है किसी इंसिडेंट की। इमेजिन आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आग लग गई है। तो हम ये देख सकते हैं घर में आग लगी हुई है और जो उसके लाइक जो लोग हैं घर में रहने वाले, वो पैनिक कर रहे हैं। सो दिस इज अ कम्प्लीटली नेचुरल थिंग, लोग पैनिक कर जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम थ्री एल्स जो हमारे पास 3 पिलर्स थे पीएफए के, हम उनको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन लुक, हम देखेंगे कि जो डोर एरिया है क्या वो सेफ है।
और चेक करेंगे कि अगर घर का कोई शख्स या कोई रहने वाला कहीं अंदर तो स्टक नहीं हो गया, क्या सब सेफली बाहर हैं। सो ये हमारे पास लुक पिलर था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लुक यूज किया। देन हम लिसन पिलर यूज करेंगे। हम उनके पास जाएंगे, उनके पैनिक में चिल्लाने या रोने को हम उनको संभालेंगे, उनकी क्वेश्चन उनको पानी सर्व करेंगे। हम उनको किसी सेफ प्लेस ले जाएंगे, यानी उस जगह से थोड़ा सा दूर हम उनको करेंगे। देन हम लिंक पे यूज करेंगे कि इमीडिएटली उन्हें पानी या कोई ऐसी चीज देंगे, अगर उनके जिस्म या कपड़े वगैरह जल गए हैं तो उनको कोई ब्लैंकेट या कोई साफ कपड़ा तो कुछ इस तरह की देंगे चीज। और हम एम्बुलेंस को या फायर, हो गया लिंक पिलर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने ग्राफिक शो रही होगी जिसमें पूरे पीएफए के ऑब्जेक्टिव को ब्यूटीफुली माइंड मैप में समराइज किया गया है। लाइक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एक्चुअली इन एलिमेंट्स का गिर्द घूमती है। लुकिंग हमारी बेसिक नीड्स हैं, प्रोटेक्टिंग है, विक्टिम को मजीद हार्म और डेंजर से दूर रखेंगे। लिसनिंग और कंफर्टिंग पेश करेंगे, एक्टिव लिसनिंग या उनके फिजिकल पैनिक को काम डाउन करेंगे। एक्टिंग एंड इंस्टिलिंग होप, उन्हें एक्यूरेट इन्फो देंगे या उन्हें मजीद हम इस तरह की हेल्प करेंगे कि उनको ये फील करवाएंगे कि वो इस सिचुएशन में अकेले नहीं है। पीएफए सिर्फ हमारे पास किसी नेचुरल डिजास्टर यानी अर्थक्वेक या कोई ऐसे सीन्स नहीं है जो उन पे अप्लाई नहीं होता। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत माइक्रो क्राइसिस होते हैं जहां हम अनजाने में पीएफ भी दे सकते हैं। लाइक आपका कोई फ्रेंड या कोलीग एक बहुत ही हैवी पैनिक अटैक या ब्रेकडाउन से गुजर रहा है ड्यू टू ऑफिस वर्कलोड और प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस, एनीथिंग। डेली लाइफ सीन्स में हमारे पास किसी के रास्ते में माइनर मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो वो उसके खौफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है और लाइक उसके हाथ पैर जो है वो कांप रहे होते हैं। वहां अपने या कोई भी शख्स जो इस चीज से गुजर रहा है, हम उन्हें कभी भी एक लंबी एडवाइस नहीं देंगे, उन्हें लेक्चर नहीं देने लग जाएंगे। हम जस्ट उन्हें उनके पास बैठेंगे और कहेंगे कि टेक योर टाइम, सांस लो, पानी पियो, मैं आपके साथ हूँ, अब मुझे बताएं कि आप मेरी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। पीएफए में सिखाता है कि समटाइम्स पीपल डोंट नीड सॉल्यूशन, दे नीड अ सेफ स्पेस। आप उनसे कहें कि मुझे नहीं पता कि इस मसले को हल कैसे करना है, बट मैं जानता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। लाइक अगर हम देखें तो पीएफए इट्स 80% लिसनिंग एंड 20% स्पीकिंग। समटाइम्स पीपल ओनली नीड्स टू बी लिसन। जो हमारे अंदर का स्ट्रेस होता है, कभी कभी वो जस्ट सुनने से, या हमें कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो कि हमें मोटिवेट कर सके, हमें सुन सके, तो यही बहुत होता है। लोगों को बहुत टाइम किसी ज्यादा हेल्प की या किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती, उनको जस्ट एक बहुत अच्छे फ्रेंड की जरूरत होती है जो उनसे पूछ सकें क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो हम ये देखेंगे कि when you are deeply stressed, what is the most first thing you do to cope with situation? हमें से बहुत से लोग होते हैं जो जिनको हमें पता है कि हमारी ये सिचुएशन है, लेकिन हम उसको कोप करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसका अल्टरनेट कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट यूज करने लग जाते हैं। सो वी डोंट हैव टू डू दिस। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई आके हमारी हेल्प करे या हमें मोटिवेट करे, हमें बताए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्किल्स क्या है। हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई आके कहे कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो फर्स्ट एड ऑल तो हम सबको अपनी जात के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। अगर हम देखें ना सोशल मीडिया पे, हमारे जान पहचान के, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलीग्स में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि डिप्रेसिंग अलार्मिंग सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना, तो स्टेटस या कोई पोस्ट ऐसे जरूर करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो कि स्टेटस गेम्स खेलते हैं। सो आप उस पे उसको इग्नोर करने की बजाय या उसको निग्लेक्ट करने की बजाय, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि उसको इनबॉक्स कर सकते हैं, हे
मैंने आपकी पोस्ट देखी। सो डू यू वांट टू से समथिंग? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें कॉल करूं? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम किसी चीज से गुजर रहे हो? सो फिजिकली जो फर्स्ट एड है ना, वो सीखने के लिए शायद किसी को भी डॉक्टर या डी फार्मेसी या पैराडेमिक बनना पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सीखने के लिए आपको सिर्फ एक इंसान बनने की जरूरत है। इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग। आपके अंदर जस्ट इमोशंस हो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट अदर पर्सन वेल बीइंग। अगली बार जब हम में से किसी के सामने भी कोई शख्स टूट रहा होगा, तो एक मशवरे देने से पहले अपना हाथ आगे बढ़ाएं, उन्हें पानी दें और कहें, हाँ हूँ आपके साथ। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? क्या तुम्हें कुछ और कहना है? So guys, remember, PFA, it's not about fixing someone's entire life in 5 minutes. It's about making the next 5 minutes livable for them. आपका एक पानी का ग्लास या आपका किसी का हाथ थामना या जस्ट 4 to 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस किसी को लॉन्ग ट्रॉमा से बचा सकता है। या खामोशी से हमारा किसी के पास बैठ जाना इस इंसान इंसान के जो है बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें ऑन द स्पॉट हेल्प ना मिले, सारे होप अपना खो देते हैं, होपलेसनेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दें। सो ये हमारा आज का सेशन था साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का। सो इस रिलेटेड अगर किसी की क्वेश्चन है तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Assalamu alaikum, Ms. Kayat. It was wonderful, wonderful session by you. Actually, I wanted to add just something. Just recently, मेरे यूनिवर्सिटी जो है जूनियर्स के साथ कांटेक्ट हुआ, तो टीचर्स जो बेसिकली बच्चों को सिखाना उनका मकसद होता है कि आपको किस तरह स्ट्रेस में एक्ट करना है, किस तरह आपको एंजाइटी में आपको एक्ट करना है, खुद को संभालना है। एक्चुअली आजकल टीचर्स लाइक बच्चों को बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके इमोशंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उल्टा उन्हें इतना स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनका स्टडीज से या टीचर्स की तरफ से एतमाद ध्यान टोटली हटना शुरू हो जाता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जब कांटेक्ट किया, मेरे जूनियर्स ने, दे वर जस्ट टेलिंग कि टीचर्स बिल्कुल हमें एंजाइटी पैनिक मोड पे लेके जा रहे हैं, लाइक इतना अचानक से कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। ये तो ये चीजें पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करती हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, कि जब हम उन्हें नेगेटिव चीजें उनकी हाईलाइट करते हुए कि अगर आप ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, हर चीज नेगेटिवली दिखा रहे होते हैं। अगर हम किसी को गाइड करने की सूरत में या किसी को भी हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, इमोशनली सिंपथीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम उसे पॉजिटिव साइड्स दिखा सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा पॉजिटिवली हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आ सकते हैं, तुम्हारी हेल्प आउट हो जाएगी, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग लोगों को इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर रहे, उल्टा वीक कर रहे हैं आजकल। सोना, आपका क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेबल है। आजकल ये जो इश्यू है ना, ये एकेडमिक प्रेशर का ये बहुत ज्यादा है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बन चुका है ना, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज जो हैं वो सामने देखने को आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों को जस्ट ग्रेड्स के प्रेशर में, स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उनको निगलेक्ट करते हैं, उनको बस एक ही चीज सिखाते हैं, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। और अगर हम यूनिवर्सिटी लाइफ की जिस तरह आपने बात की, तो सीजीपीए का प्रेशर और जो कंपटीशन है ना, हम हमारा भी वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। सो ये टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लें और स्टूडेंट को लाइक इस तरह प्रेशराइज ना करें। सो हम पे भी है कि अब वी आर मेच्योर। और अगर हम स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात करें, सो एवरीवन नोस के कोई भी इस तरह नहीं आपको सिखाता कि उंगली पकड़ के हमें नहीं करना होता। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे पास जस्ट मटेरियल जो होता है, अगर हमने नहीं कह सकते कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है। तो स्कोप होता है जो हमने खुद पैदा करना होता है, उस चीज में हमने बियॉन्ड द लिमिट्स हमने जाना होता है। सो
ये है हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है यूनिवर्सिटीज में। हमें स्टूडेंट्स को इस चीज का नहीं सिखाया जाता कि किस तरह उनको अपनी मेंटल हेल्थ की ख्याल रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को हमें ना इस तरह बताना चाहिए टीचर्स को, जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, कि मार्क्स कम आने से आपकी जो लाइफ है वो खत्म नहीं हो जाएगी, जस्ट अ नंबर्स गेम। तो सीजीपी की तरफ तो हमें नहीं भागना चाहिए। हम जो काफी सारी चीजें उनको फिक्स कर सकते हैं, हम अपने स्किल्स जो हैं वो खुद गेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टोटली एग्जैक्टली, लाइक हमारे अभी रिसेंटली जो इशू के रिलेटेड मैंने बात की, स्टूडेंट्स को कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड प्रेशर मिला हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स अब नेगेटिव वेज यूज करते हुए लाइक आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं, आर्टिकल्स दूसरों से लिखवा रहे हैं। सो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं स्टूडेंट पे पड़ा, क्रिएटिविटी खत्म होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर टीचर्स थोड़ी सी लीनियंसी शो करते हुए कि अच्छा आपकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है और आपको मस्ट ये करके दिखाना है, या जो स्टूडेंट्स वीक फील कर रहे हैं उन्हें री गाइड कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पे जो है वो करेगा, अफेक्ट करेगा उनके माइंड्स को, स्टूडेंट्स के। और इस चीज का उन पे मोरल भी बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे कि वो दूसरों को भी हेल्प आउट करने में इंकरेज्ड फील करेंगे। यस श्योर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ ये फ्रेमवर्क इस तरह बना दिया गया है और क्राइटेरिया इतना हाई सेट कर दिया गया है, ये हमारा माइंड सेट इस तरह बन गया है कि हमें सेट कर देते हैं कि अगर कोई बंदा उस चीज को क्रॉस नहीं कर रहा, सो दे आर नॉट गुड इनफ। सो ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट कहलाते हैं साइकोलॉजी में। तो जब तक अगर हम ये नहीं सिखाएंगे किसी को रिवॉर्डिंग है, या फिर थोड़ी सी लाइक किसी को अगर हम दे देना कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर डेडलाइन हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे या थोड़ी सी उसमें रिलैक्स स्टूडेंट को कर देंगे, सो ये हेल्पफुल तो रहेगा। बट सभी जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो काफी सारी चीजें चेंज होने वाली हैं और सेट होने वाली हैं, लेकिन वो शायद हो नहीं सकती।